Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and Assalamu alaikum, my dear student and my friend. Today we'll discuss coordinate geometry and subtopic is midpoint and different points means different points in between two points. उस पर भी बात कर लेंगे. तो आइए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को लेकर आगे चलते हैं कोई एग्जाम्पल के साथ. राइट. सो बच्चों देखो, अब मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. ये ड्रॉ कर दी. Let's suppose we have a line like this, ठीक है, with two extreme points A and B, right? Let's suppose coordinate of point A is 2, 4 and coordinate for point B are 6, let's suppose 12. We need to find coordinates of this midpoint, that is M. अगर M midpoint है, so therefore we may assume that MB must be equal to AM. Both distances are equal, ठीक है, and we have to find this x, y means coordinates of point M, which is the midpoint of A and B or the line segment AB, ठीक है. Now you can consider this A as x1 and y1, ठीक है, and you may consider this as x2 and y2. अब तुम्हारे पास x1 x2 है. You know about x2 and y2 as well because you are given these 2 points A and B. You need to find this point M, which is the midpoint of A and B. So we have a formula that is for x is equal to x1 plus x2 over 2 minus नहीं आता इसमें, gradient में आता है, right? And for y1 plus y2 over 2, ठीक है जी. Now we will put these values over here. So in order to find value of x ordinate, we will put x1 as 2 plus x2 as 6 over formulas 2. फॉर्मूले का 2 जो है वो हमारे पास सही ऑलरेडी तुम्हें पता है. Now it becomes x is equal to 8 over 2, that is 4. ये तो आ गया x. Now we discuss y. Y is equal to y1. Y1 is 4. Replace this 4 over here by this y1 plus formula का आ गया. y2 is 12. 1 2. Now we'll divide it by 2 and y is equal to 12 plus 4 16 over 2, that is 8. So order pair is 4, 8 in terms of x, y. ठीक है. So now we can conclude that the coordinate of this midpoint are 4, 8. आगे बात समझ में. इसको जरा सी कॉपी कर लो, फिर मैं तुम्हें जरा एक्सट्रीम पॉइंट निकालना सिखाता हूँ. मिड पॉइंट के अलावा अगर 2 पॉइंट पता हो और अगला निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे. तो पहले इसको तुम कॉपी कर लो, फिर हम जरा आगे बात करते हैं इसको इंशाल्लाह. लेट्स सपोज अगेन वी हैव अ लाइन ए बी. फिर से ले लेते हैं, यही बना देते हैं. A and B are two extreme points of this line segment. A, B are two extreme points of a line segment, right? And A has coordinate, let's suppose 2, 5, and this point which is M, again M ही ले लेता हूँ, has coordinate 4 but not 4 but 5 ले लेता हूँ और आगे बढ़ जाते हैं. 5, 12, right? And we have no idea about B. So वो कहता है find the coordinate of point B if M is the midpoint of line segment AB. ठीक है, लाइन सेगमेंट है तुम्हारे पास AB, उसका मिड पॉइंट भी पता है और एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट नहीं पता. सो यू मे अगेन कंसीडर दिस पॉइंट एज x. पहले देख लो बेटा ताकि समझ में आ जाए बात. यू विल कंसीडर दिस एज x, y. इसको तुम x y ही लेना, इसको तुम x1 y1 ले लो जैसे पहले लिया था.
तुम चाहो तो इसको x2 y2 भी ले सकते हो, ऊपर वाले को फिर x1 y1 ले लेना, ठीक है। एंड यू विल कंसीडर दिस पॉइंट एज x2 एंड y2, ठीक है जी। अगेन वी हैव अ फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट, x इज इक्वल टू, अब सोल्यूशन पर आ गए हम, हाँ बोलो, x1 प्लस x2 ओवर 2, एम आई राइट। एंड फॉर y इज इक्वल टू y1 plus y2 over 2, but over here we have to find this x2 and y2, ये दोनों निकाल लेना। तो why don't we make x2 and y2 as subject of the equation, यहाँ पर तो एक सब्जेक्ट बना हुआ है, हम इसको नहीं बनाना चाहते, तो हम क्या करें इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस x बाय दिस 2, है ना, ये 2 वहाँ चला जाएगा, नहीं अभी कुछ नहीं करेंगे, वो पकड़ लेंगे बाद में, लेकिन पहले सब्जेक्ट बना लो। वी मल्टीप्लाई दिस x बाय दिस 2, इट बिकम्स 2x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, एम आई राइट। एंड अगर तुम इस x y2 को यहीं पर छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 2x minus x1. So now you have a new formula, amendment of the formula, modified form of the formula, that is y2 is equal to 2x, x2 is equal to 2x minus x1. इसको तुम ऐसे डब्बे में बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है। सिमिलरली यू मे टेक दिस एज y2 is equal to 2y minus y1. Now put these values over here, है ना, तो x2 equals to 2 times of x is 5, excellent, minus x1 2 becomes 10 minus 2 equals to 8, right? And over here y2 equals to 2 times of y, that is 1 2, minus y1 is 5, am I right? And y2 is equal to 24 minus 5 equals to 19, I think 19 हो जाएगा, है। सो 19 होगा, क्या होगा, 19 होगा। सो देयरफॉर वी हैव कोऑर्डिनेट्स एज 8, 19 फॉर दिस एक्सट्रीम पॉइंट। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड द मिड पॉइंट और फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट, मे बी ए और मे बी बी, इधर ए और बी, ठीक है। तो अब तुम्हारे लिए ये मसला भी हल हो गया। तो इसको ड्राइव करके तुमने लाना है, पहले सब्जेक्ट बनाना है, वैल्यूज बाद में पुट करना है यार, पहले सब्जेक्ट तो बना लो, ठीक है ना, वो ज़्यादा अच्छा किया मुझे, तो पहले सब्जेक्ट बना लिया करो। तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन हो गया ज़बरदस्त किस्म का, और इसके साथ ही तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। अब मिड पॉइंट पर भी आ गई बात, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा ज़रा, लेकिन वो तुम्हारे कोर्स की तो नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है, तुम्हें काम आएगी वो कभी जाकर, ठीक है, तुम्हारे भी काम आएगी, ज़रा देखना, बात की मेरी याद रखना। पहले इसको उतार लो। ये m, if m is the midpoint, what should be the relation between am and mb? रेशियो क्या आएगी, कोई मुझे बताओगे क्या होगी? ज़ाहिर है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो 1/1 मीन्स 1:1, यही बनी ना, फाइन। लेट्स सपोज वी हैव अनदर पॉइंट दैट इज n, ये आ गया n यहाँ पर, ठीक है, ठीक, मैंने लिख दिया इसको n। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस n के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। लेट्स सपोज इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्या है कि इफ n is the midpoint of a and m, ठीक है, find the coordinates of point n। तो n के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे, n का x ऐसे निकालेंगे, x1 2 है ना, प्लस बताओ, प्लस 2 प्लस 5 over 2 which is 7/2 and 3.5, right? Now for y क्या होगा भाई, 5 plus 1 2 over 2, right, equals to 17/2, है ना, and 8.5,
ठीक है, राइट। तो इस बार हम ए को x1 और y1 लेंगे और m को x2। यस यस यस, एक्सलेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो n के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें मिल गए 3.5, 8.5। यहाँ तक बात मुश्किल है कोई नहीं? नोट करो ज़रा, आगे एक और काम की बात बता रहा हूँ, इसको नोट कर लो यहाँ तक, फिर चलते हैं आगे, इस पार्ट को दूसरा लेके चलते हैं। दैट इज पार्ट ए। ये देखो b कितना आ रहा है दोस्त, ये b कितना आ रहा था 9,4 19 8,8 19 आ रहा था ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, याद रहेगा कितना था, यहाँ पर लिख देता हूँ तुम्हारे लिए 8,19। इसको चुपके से लिखा है मैंने, जैसे कि हमें ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं पार्ट बी में, ये ज़रा काम की बात है, समझ लीजिए आप लोग भी, ठीक है। और वो ये कि वो कहता है इफ ए एन रेशियो एन बी इज कितनी होगी, ए एन रेशियो एन बी कितनी होगी, ए एन रेशियो एन बी कितनी होगी, ए एन रेशियो एन बी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी रेशियो होगी, 1। एक्सीलेंट यार, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 1:4 एन बी 1:4, ठीक है बेटा, आपको समझ आ गई बात। और मिड पॉइंट के लिए क्या होती थी 1:1, जब ये मिड पॉइंट है तो 1:1 होती थी। तो इट मीन्स के बी इज नॉट अ मिड पॉइंट, और दिस एन इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, नहीं है ना। क्या कह रहा है वो, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है भाई, ऑफ विच पॉइंट, बी, पॉइंट बी। अब बी के हमने चुपके से लिखे हैं वहां पर 8 और 19, लेकिन अब बी निकालना है, कैसे निकालें भाई, इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या होगा, बी तो मुझे पता नहीं है ना, तो इसके लिए मैं इसको ले लेता हूँ, किसको, कौन कौन सी दो चीज़ें, ए एन एन बी। तो ए एन ए बी का मैं अगर बात करूँगा तो इसको x1 y1 लेता हूँ, इसको x2 y2, इट मीन्स की वी ऑलवेज टेक एक्सट्रीम पॉइंट्स एज x1 y1 एंड x2 y2, और बीच में जो भी आ रहा होगा उसको xy ले लेंगे। तो नाउ दिस x इज इक्वल टू कौन सा x, इसका x और y, ठीक है, ये 1 और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 4, 1 2 3 होगी ना यार, ये तो इसको मैं भी सही कर दूँ, 1:3 हो गई ना, एन बी 1:3, टोटल तो 4 हो गए, तो 1:3 हो गई। ऐसी चीज इसी तरह से सीखते हैं हम लोग। तो x क्या हो जाएगा भाई, इसका x जो मुझे निकालना है, किसका निकालना है, n का। तो n का x निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले x1, तो x1 मल्टीप्लाई करेगा किससे, इस तरफ की रेशियो से 3 से, ठीक है, प्लस अब मैं लिखूंगा x2 जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, उसके लिए रेशियो क्या मल्टीप्लाई करेगी, ये वाली 1। ये पूरा फॉर्मूला है, तुम्हारी इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग भी सीखो, थोड़ी सी बात है, ओवर दिस 3 एंड दिस 1। आओ जरा आप दोबारा उसी पे बात करते हैं, पहले इसको फिर बात करते हैं। ये पॉइंट था x, ये था y, ये था मिड पॉइंट p, यहाँ की रेशियो 1 थी, यहाँ की रेशियो 1 थी, p निकालने के लिए हमने क्या कहा था, 1 इंटू दिस 1 इंटू x1 प्लस ये वाला 1 इंटू x2 ओवर दिस 1 प्लस 1। तो क्या हो गया था, p का x कैसे निकला था, x1 प्लस x2 ओवर 2। एक्चुअली ये वाला x1 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ था और ये x2 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला x1 जो है ये इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला x2 जो है ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और इन 3 और 1 की रेशियो को हम यहाँ पर लिख देंगे +3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जरा पढ़ के बताओ मुझे, x इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2 अपॉन 4। सब्जेक्ट किसे बनाना है दोस्त मुझे, x2 का, फाइन। तो क्या करें इसको, हम क्या लिखें फिर, 4x माइनस 3x1 कर दें डायरेक्ट, थोड़ा मसला तो नहीं है, इज इक्वल टू x2। तो x2 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x1, यही हो गया ना। देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 4 इंटू x क्या है दोस्त बताओ, x5 इसका मतलब ये हुआ कि हमसे अब थोड़ी सी गलती हुई है, हम इसको रखें अभी 9 और यहाँ पर रख दें 8 और 19, क्योंकि हमें तो वो पॉइंट भी नहीं पता, पहले मिड पॉइंट तो निकाले थे, मिड पॉइंट निकाला हमने, एन निकाला कहीं,
नहीं निकाला ना अभी तक यानी? हाँ हमने निकाला 3.5 और 8.5। कहाँ निकाला है? तो फिर बताओ यार, फिर क्या मसला है? 4 इंटू हाँ बताओ, शाबाश। 3.5, ज़बरदस्त। -3 इंटू 8.5, तो देखते हैं भाई क्या आएगा। ज़रा 3.5 से दोबारा देख लो यार, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। ओवर 4 भी तो करना है ना? नहीं ओवर 4 तो हो गया ना, अब तो खत्म हो गई बात। ज़रा करो 3.5 को मल्टीप्लाई बाय 4 करो। 7 टू द 14, 8.5 नहीं होगा, ये होगा तो y ले गया ना तुम, y थोड़ी होगा। दोबारा सही कर लो, तुमने y की वैल्यू बता दी, कोई बात नहीं। तो पहले x की वैल्यू बता रहे हैं। 4 इंटू ये वाला 4, फिर 4 कर दिया, 3 प्लस 4, 4 इंटू एक्स, एक्स कौन सा आएगा? यहाँ से आएगा, 3.5 आ गया, ठीक है। -3 इंटू x1 क्या होगा? x1 ये रहा 2, बिल्कुल सही बता रहे हो तुम, एग्जैक्टली अब तुमने सही बताया। गलतियाँ कर 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 ही हम सीख रहे होते हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात होती है, बड़ा पॉजिटिव साइन होता है ये। तो x2 कितना आ जाएगा भाई, बताओ मुझे। 7 टू द 14, 14 आ जाएगा, राइट। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 14, और ये कितना हो जाएगा? 6, कितना हो जाएगा है? 8 हो जाएगा। वहाँ देखो कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, मीन से सही आ गया। ज़रा y भी निकालना इधर से तुम्हारे लिए, तो इधर y कर लेते हैं। ज़रा बताओ इधर, इसी को बताना मुझे। y इक्वल्स टू 3y1 प्लस y2 ओवर 2, यही फॉर्मूला बनेगा ना, ठीक है। सिमिलरली ये यूज़ कर लेता हम इसको, यहाँ से यहाँ तक y2 नहीं अपॉन 4 होगा, अपॉन 4। नहीं यार बिल्कुल सही कह रहे हो, सही करो, सही करो। मैं जब लेफ्ट टू राइट प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मुझे देखने में मुश्किल हो जाती है। तो एनीवे y2 इज इक्वल टू 4x 4y, ठीक है, माइनस 3y1, 3 टाइम्स ऑफ y1, ठीक है भाई। बताओ जरा जल्दी से, 4 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नहीं हम ये पहला हाँ तो बताओ कितना होगा? 8.5, थैंक यू, यही तो से पूछना मुझे। -3 टाइम्स ऑफ y1 क्या हो जाएगा दोस्त? 5 हो जाएगा। जरा बताओ 8.5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है बेटा? 9 4 है 32, चलो तुम्हारे क्या 32 लिख देता हूँ मैं। -15 कितना आएगा बताओ? तो 17 तो नहीं बन रहा, 32 15 17 तो कुछ गड़बड़ हुई है, दोबारा कर लो, 36 होता होगा। अगर देखो कुछ ना कुछ मसला है। हाँ भाई कितना हो रहा है? 8.5 मल्टीप्लाई बाय 4, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही है भाई। कितना आ गया दोस्त? 19 आ गया, वहाँ देखो कितना है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने तुम्हें बड़ा काम सिखा दिया, ये तुम्हें कभी बहुत काम आएगा, और मुझे पता है व्यूअर्स के भी बहुत काम आएगा, कहीं ना कहीं जाकर जब एडवांस पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ कॉपी डाउन इट, एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। अपने कमेंट्स भेजिए, बताइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम कर सकें और आपको इसका एडवांटेज पहुँचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।